Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, On sir. your camera. Akshat Maheshwari, you are left. You are the only one who need to switch on this camera. पढ़ाई लिखाई की आप लोगों ने जो भी पढ़ाया पिछले क्लास में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट Yes, sir. Yes, ओके sir. किसी का कोई डाउट है जो भी किया है हम लोगों ने अभी तक No, sir. एनी डाउट एनीवन ओके सर तो एक बार लीचिंग का मीनिंग बता दो। ओके ठीक है साहिल Yes, sir. tell me about black soil what do you know about black soil Yes, sir. So black soil is also known as the black cotton soil or the regular soil. It is found in the Deccan Plateau region of India. So black soil is well known for its capacity to hold moisture. It is black in color, and during summers it develops cracks that allows proper aeration of the soil. It is difficult to work on the soil when it is wet because it gets sticky, and it is necessary to till it right after okay the first monsoon shower. okay Sahil tell me about nutrients of black soil which Yes, sir. nutrients are found So, nutrients of black soil include potash, lime, calcium carbonate, magnesium, but it is deficient in phosphoric content. deficient or generally poor Generally poor in phosphoric content. डेफिशिएंट मतलब आपने क्लियरली डिमार्केट कर लिया Hmm. फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं है तो जनरली पुअर ओके यू विल यूज द सेम वर्ड Okay. ओके एंड who had written a book written by Schumacher what was the name of that book What, sir? Schumacher ने एक किताब लिखी है उसका नाम क्या है Small is beautiful. स्मॉल इज ब्यूटीफुल ओके 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ Yes, पे sir. सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म फाइंड किया गया था क्या है वो रिपोर्ट में Sir, our common future. वो गड़बड़ है बुक वो बुक थी, और वो प्रोनाउंसिएशन उसका याद नहीं आ रहा, पर BRUNDTLAND ब्रंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट. ब्रुकमैन कमीशन ओके और महात्मा गांधी सेड देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड है ना और नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड इसका क्या मतलब है सर, मतलब resources should not be overexploited or used by any single person excessively, because it leads to various problems such as division of society into haves and haves not. And everybody should use the resources just for fulfilling self needs, but not excessively. mass production should be replaced by production by masses what does this implies what do you mean by this you will find the term statement written over there mass production should be replaced yes mass production should be replaced by production by masses what does this stand for
सर इसका थोड़ा क्लियर नहीं है. Who will speak on this? हिमानी, आप लोग कैमरा क्यों ऑफ कर दे रहे हैं? अक्षित एंड अनुराग, switch on your camera. Yes, who will speak on this? Himani, will you try? Himani, will you try? Yes, no, anything? नहीं आता सर इसका. Okay, Akshit Maheshwari, I think you can answer this. So what? Mass production should be replaced by production by masses. What this stands for? What do you mean by this? Idea. No idea. Anurag Singh, Yes, do you sir. have an idea? What will it Yes, answer? sir. What means, what does mass production should be replaced by production by masses? Sir, mass What? production should be replaced by pro- production by masses, sir, as it will create many job opportunities for the Very good. for the people of the country. Okay, mass production means if you will go for mass production, then machine will require more raw materials. More raw materials means more resource depletion and more environmental problem. Okay, and if you will replace it with production by masses, then the rate of depletion of resource will be less compared to machine, as well as it will generate more employment opportunity, which will further enhance economic development. है ना? समझ में आया? Yes, साहिल, sir. हिमानी, अक्षित, इज इट क्लियर? Yes, sir. साहिल, आपने आंसर नहीं दिया था. मैंने आप पूछा आपसे कि आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट. साहिल, आर यू देयर? हिमानी, आपको बताओ बेटा, क्लियर है ये? यस सर. चलो, नेक्स्ट है अनुराग. एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर और आप बताओ. अनुराग से टर्न कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल. अनुराग, लेटराइट सॉइल के बारे में बताइए आप. अनुराग, लेटराइट सॉइल. अक्षित Maheshwari, laterite soil. The laterite soil developed under tropical and subtropical climate in hot and wet and dry seasons. They have intense leaching. These soils formed due to intense leaching due to heavy rainfall. And these soils are mostly acidic with pH value less than 6. And Yes, they are sir, mostly, sir. May I answer? Wait, let him answer. and they are mostly found in the areas of western coastal plains and in some part of Odisha, Maharashtra, and Rajasthan. Okay, good. What do you understand by leaching in laterite soil? Himani, here, listen carefully. Yes, Akshay, what do you understand by leaching in laterite soil? They get more water due to rain. Anurag, what is leaching in laterite soil? Sir, leaching means, sir, it absorbs high temperature and heavy rainfall, low humus content. No, incorrect. Leaching is a process through which the nutrients of laterite soil drain down into drain beneath the soil. Okay, comes down to the lower part of the soil, a lower layer of the soil. Okay, so upper layer में क्या होगा? Nutrients की deficiency हो जाएगी. That will further impact the fertility of soil. That will further decrease the fertility of soil, and hence we require
fertilizer, pesticides, and all in order to improve the fertility of soil. Got it, Himani? Yes, Himani, sir. clear? Okay. So this is what we did. I think DPP आप सभी ने कर ली होगी, है ना? I hope so. Yes, sir. Hopefully. Only Himani has said yes. I don't know what the rest of the Yes, students sir. are saying. Okay, good, Akshit. What about Anurag and Sahil? आप लोग DPP करते हैं? यस सर, लेकिन अभी रिसोर्स डेवलपमेंट की नहीं की सर आजकल भी। सर इस वाली रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की मैंने नहीं की बस अभी। हाँ कर लीजिए। आई थिंक कल आपका NTSC का भी पेपर है। यस ना? सर। बी प्रिपेयर। तो हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में वेयर वी आर राइट नाउ। So we have to start from arid soils. Okay, we have to start from arid soil. Okay. Arid soil. This one is arid soil. Arid soil, as the name suggests, rocky sandy soil, which you will find mostly in state of Rajasthan, where there is very less rainfall. Or you might have studied this in your physical features of India, desert, ocean. Okay. तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो डीप रूटेड होते हैं। जानते हैं ये बात आप? डीप रूटेड होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? Resources and development. So resources and development, we have to complete here arid soil. Okay. So in arid soil आप देखोगे sandy rocky soil. Okay. इसके जो है कि sandy rocky soil, फिर इसके बाद जो plants होते हैं, suppose this one is a plant, suppose, तो वो deep rooted होते हैं। Okay. तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सूटेबल नहीं होता, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सूटेबल नहीं होता, बट प्रॉपर इरिगेशन करने से हम इसको सूटेबल बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लोअर स्ट्राटा में, इसके लोअर हॉरिजॉन में आप देखेंगे कंकर नोड्यूल्स भी होते हैं, जो कंकर नोड्यूल्स लीफ के लिए एज वेल एज क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। उस कंकर नोड्यूल्स को हम हटाते हैं। साथ ही साथ जो ऑयल वाटर को फिल्टर होने में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिल्टर होके वो बीनीथ नहीं जा पाता। तो ये दीज आर थिंग्स व्हिच वी विल स्टडी इन एरिड सॉइल। ओके। कैक्टस वगैरह यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। ओके। evaporation faster होता है, as you all know. तो it varies from red to brown in color. ठीक है। sandy in texture, saline in nature. देखने में sandy और saline in nature. और कहीं कहीं पे तो in some area the salt content is very high. You know, a lake in Rajasthan known as Sambar Lake. Have you heard of it? Yes, sir. Sambar Lake के बारे में? Yes sir. The soil content is very high. Okay, due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster. Obviously, here you know that very less rainfall. हम किस एरिया को डेजर्ट बुलाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है? So obviously, this area experiences less than 25 centimeter rainfall and hence a desert area. Okay, if it's a desert area, means somewhere temperature will be high. When temperature will be high, then humus content of soil will be high or low? क्या होगा? लो। It will lack humus content. ठीक है। ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो will that soil be suitable for growing crops? No, it will not. ठीक है। So it will lack humus, moisture. मैंने आपको बताया the lower horizon of the soil are occupied by conker because of increasing calcium content downward. कैल्शियम कंटेंट क्या होता है, बढ़ता है, इसकी वजह से कंकर
Calcareous deposit, आपने physical features of India पढ़ा है? Calcareous deposit generally we find in Bangar soil, Kankad nodules. So here also you will find that Kankad nodules are there in beneath or in the lower strata of this soil. Okay, देखो इस कह रहा है ना, restrict the infiltration of water. Means if water want to filter and want to go downwards in groundwater, you will find that it will have to face obstacle. Okay, a restriction of Kankad will be there, and it will not be easy for water to go downstream further. Okay, तो इसलिए ग्राउंड वाटर यहाँ पे का जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और उसमें रिचार्ज का बहुत, उसका रेट ऑफ रिचार्ज भी बहुत कम होता है, या रेप्लेनिशेबिलिटी भी कम होती है. ओके, तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, एज आई डिस्कस्ड, प्रॉपर इरिगेशन करेंगे then this soil can become cultivable. So if you will look the map of India, then you will find the state like Rajasthan, particularly this one. ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में इंदिरा गांधी with the help of western Rajasthan and this eastern Rajasthan. So here with the help of Indira Gandhi Canal, some parts are cultivable. Okay, because of Indira Gandhi Canal. You have you heard about Indira Gandhi Canal? Yes, sir. है ना? No, sir. तो इंदिरा गांधी कैनाल है, जो पंजाब की ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे वाटर लिया जाता है और उस वाटर को ड्रेन आउट किया जाता है इस रीजन में. ओके, इंदिरा गांधी कैनाल. नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो ये एरिड सॉइल आपका खत्म हो गया. ओके, समझ में आया एरिड सॉइल सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, ओके, तो फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देखें. फॉरेस्ट सॉइल, सपोज एक मैं हिल बना लेता हूँ टू मेक थिंग मोर क्लियर फॉर यू. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? घटता है. sir. Yes, sir. और ऑक्सीजन लेवल भी, सर. हाँ, टेम्परेचर घटता है, तो टेम्परेचर घटता है. व्हेन टेम्परेचर विल डिक्रीज, देन सब्सिक्वेंटली यू विल फाइंड द सॉइल फॉर्मेशन और द सॉइल टाइप विल आल्सो चेंज. ठीक है, द वेदर विल आल्सो बी चेंज ओवर हियर. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यू विल फाइंड सॉइल टाइप्स में क्या होंगे, थोड़े चेंजेस आते जाएंगे. ठीक है, आपने फिजिकल फीचर्स अगेन नहीं, नॉट फिजिकल फीचर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा होगा. तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पढ़ा जब होगा आपने, तो उसमें ये पॉइंट भी आया होगा डिस्कशन के लिए, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में आया था. Yes, sir. Deciduous forest. हाँ, डेसिडुअस माउंटेन. तो इसमें आप जैसे ऊपर जाएंगे सॉइल का जो है वैरायटी चेंज होगा, सॉइल का टेक्सचर चेंज होगा, वेजिटेशन चेंज होते हैं. लगभग 3600 मीटर टू 4500 मीटर वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमारा क्या बनता है? स्नो लाइन. क्या बनता है? स्नो लाइन. तो स्नो लाइन वैरी करता है. तो सपोज इससे बिलो रहेंगे तो स्नो लाइन नहीं है, उससे ऊपर जाएंगे तो स्नो लाइन मान के चलते 3600 मीटर. तो स्नो लाइन अगर बनता है तो उसके नीचे भी सॉइल होता है. ठीक है, बट वो क्या होता है? बर्फ से ढका होता है, स्नो से ढका होता है. तो उस सॉइल का टाइप भी जो है कि क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे सॉइल अलग, वेजिटेशन अलग, यहाँ पे अलग, है ना. तो उसमें अब ये इसमें ह्यूमस वगैरह का भी जो ह्यूमस वगैरह के भी वेरिएशंस आप देख लोगे कि नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो ह्यूमस का वेरिएशन भी होगा. और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है फॉरेस्ट का टाइप भी बढ़ता जाता है. चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको और फर्दर तो समझेंगे. ये सॉइल हिली एरियाज में पाया जाता है और माउंटेनस एरियाज में. ठीक है, जहाँ पे रेन वगैरह हो. टेक्सचर वैरीज, देखो सॉइल टेक्सचर वैरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म. दे आर loamy and silty in valley sides and coarse grain in upper slopes. ओके, तो वैली साइड्स में क्या होंगे? वो लूमी और सिल्टी. ठीक है, हल्की मिट्टी होंगे. और अपर स्लोप पे जाओगे तो वो क्या होंगे? कोर्स होंगे, मोटे होंगे. समझते हो ना? कोर्स ग्रेन भी पढ़ा होगा एग्रीकल्चर अगर पढ़ा हो तो जो भारी मिट्टी और हल्की मिट्टी शायद पिछली क्लास में बताया होगा कुछ ऐसा मैंने. तो जो ऊपर वाला होगा स्लोप उसमें
मिट्टी क्या होगी, पोअर्स होगी, और नीचे सिल्टी एंड लूमी होगी। ठीक है, चिकनी मिट्टी कहते हैं जिसको, ठीक है, बलुई मिट्टी चिकनी मिट्टी जैसा होगा। ठीक है, बहुत मतलब हल्का होगा लोअर स्लोप पे कंपेयर टू अपर स्लोप। ओके, तो इसीलिए तो सॉइल क्या हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना, पहले ही बता रहा था कि किस तरीके से सॉइल क्या करती है, वेरी करती है एज वी मूव अप। और इसीलिए जो वेजिटेशन होता है वो भी क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। वेजिटेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज होता है। स्नो कवर्ड एरिया में अगर देखें तो स्नो कवर्ड एरिया में the soil experience denudation and are acidic with low humus content। तो यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, कम होता है। और डेनुडेशन क्या होता है, व्हाट इज डेनुडेशन? डेनुडेशन में बता सकते हैं अब कहाँ, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, यस। ठीक है, तो डेनुडेशन होता है यहाँ पे, मतलब टॉप सॉइल हमेशा रिमूव करता रहता है, क्योंकि स्नो है तो स्नो आप जानते हैं कि स्नो क्या होगा, वो मेल्ट होता है। तो जब मेल्ट होगा तो अपने साथ जो है जो टॉप सॉइल होगा वो डेनुडेट करेगा ना, उसमें डेनुडेशन होगा ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो और जब नीचे हम जाएंगे लोअर पार्ट में जाएंगे तो हमें एलुवियल्स मिलेंगे, जो कि क्या होते हैं, इन कंपेयर टू अबव अपर स्लोप दे आर फर्टाइल, particularly if we talk about Himalaya, okay, where you will find that the Himalaya is made up of sedimentary rock and the lower part will be more fertile, है ना। तो भाबर बांगर, भाबर तेराई बांगर खादर, you know this well, okay। समझ में आया आप लोगों को फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये लूमी एंड सिल्टी का मतलब एक बार बता दीजिए सर। लूमी एंड सिल्टी जो टाइप एक तरीके से सॉइल है जो बहुत पतले होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है, बहुत हल्के चिकने होते हैं, और बहुत पतले जैसे सिल्टी कह दिया, लूमी कह दिया, तो छोटे छोटे जो है एकदम पतले, और जो है कि इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हिंदी में कहा जाए तो चिकनी बलुई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से होता है, मिट्टी बहुत फाइन होता है पार्टिकल। ओके, और किसी का कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सभी को क्लियर है ना जो भी पढ़ा रहा हूँ, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल? यस सर। साहिल है, साहिल, अक्षय, हिमानी? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आप लोग स्पेशल आपको बोलना पड़ेगा तब आप यस कहते हो। चलो, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन इससे पहले हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो पहले हम इरोजन देखते हैं कैसे होता है और फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन। तो बेसिकली जब हमने ये पढ़ लिया कि किन किन फैक्टर्स से सॉइल इरोड होता है, तो क्या हम अपने आप से ये फैक्टर डेवलप कर पाएंगे कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं? क्या हम अपने आप से ये फैक्टर बता पाएंगे कि कैसे कंजर्व करते हैं? यस सर। यस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इरोजन आर देयर। इरोजन मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ अ डेनुडेशन, वेदरिंग ऑफ सॉइल। अपर सॉइल जब क्या होता है, डेनुडेट होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ये नेचुरली नहीं होता है, नेचुरली होता है। जब ये नेचुरली होता है देन इट्स ओके, बट जब ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से होता है देन इट इज नॉट ओके, है ना, देन इट इज नॉट ओके if it happens due to the interference of okay. Soil erosion and conservation. Denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. देखो, प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन का, इरोजन का, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है
एंड बैलेंस अपने में नेचुरली बना लेते हैं ये. But if it is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction, mining, then you will find that there is a problem. Even when glacier water lead to soil erosion. Okay, so these are the ways through which soil eroded away. तो अब इसमें हम टाइप पढ़ते हैं कैसे टाइप के soil erosion होते हैं. जब running water cuts through the clayey soil and make deep channels as gullies, the land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In Chambal you will find this bad land. ठीक है, चंबल अगर आप देखोगे तो वहां पे ये बैड लैंड आपको मिल जाएगा. गली इरोजन. ठीक है, इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रैविन्स. ठीक है, क्या बुलाते हैं इसको? रैविन्स बुलाते हैं. आप ये देखो दिस सॉइल. ठीक है, दिस इज वेरी क्लेई सॉइल. अब होता क्या है, वाटर इसमें जब आता है तो गली के टाइप का ये जो है जगह बना देता है. डीप चैनल्स, ये तो थोड़ा सा ही दिया गया है. तो फर्दर इट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन. सॉइल इरोजन हो रहा है. ये बड़ा पिक नहीं रखा गया, बट यहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो रहा है, गली फॉर्मेशन हो रहा है. सो ऑब्वियसली दिस लैंड विल बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन. एंड दिस इज नोटिस्ड मेनली इन चंबल एरिया where the land has termed as bad land. Bad land means not fit for cultivation, and it is known as by ravines. Okay, is this clear? Gully erosion. Yes sir. Yes, sir. sir. Okay. अब उसके बाद क्या होता है कि when अब erosion में दूसरा होगा sheet erosion. Sheet erosion क्या होता है, जब water, suppose this is an area. ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जस्ट ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हिमालय पे ही हो. ठीक है, तो दिस इज एरिया. अब यहाँ से जो है वाटर, अब यहाँ से क्या हो रहा है, शीट के तौर पे सॉइल इरोड हो रहा है. ठीक है, एक शीट के जैसा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सॉइल इरोड हो जा रहा है एक साथ. Then it is known as sheet erosion. Sometimes water flows as a sheet over a large area down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. समझ में आया? जब erosion take place in form of sheet, then we call it sheet erosion. And it has been noticed that it happens generally due to flow of water. Is it clear? Yes sir. Yes. Yes. फिर उसके बाद विंड इरोजन. आई थिंक दिस इज आल्सो यू आर अवेयर ऑफ. दिस इज समथिंग यू आर अवेयर ऑफ. जब विंड की वजह से इरोजन हो जाए, विंड इरोजन. डिफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लोइंग, दिस इज आल्सो अ फैक्ट. डिफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लोइंग. डिफेक्टिव मेथड ऑफ फ्लोइंग क्या होता है? देखो सपोज दिस इज अ लैंड. ठीक है, फ्लोइंग करा रहे हैं इसमें. यू नो फ्लोइंग ना? Yes sir. तो फ्लोइंग में अब आप क्या होना चाहिए, मिट्टी बैलेंस होना चाहिए, समतल होनी चाहिए. तो तभी क्या होगा, जब आप इरिगेट करते हो उस एरिया को, तो प्रॉपर तरीके से हर जगह वाटर क्या होती है, रिसाइड कर जाती है, या वाटर फ्लो कर जाती है, हर एक एरिया तक वाटर जाती है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू एन इम्प्रॉपर फ्लोइंग, तो क्या होगा कि सॉइल फ्रॉम हियर विल सपोज कम हियर. ठीक है, आपने यहाँ से थोड़ा सा ठीक से जो है फ्लोइंग नहीं किया, यहाँ की मिट्टी उठा के यहाँ रख दिया. सो this area, this soil will means this area will have more soil. ठीक है, और यहाँ पे soil कम होगा. So what will happen, जब आप irrigate करेंगे तो this area will acquire more water than this area. यहाँ पे तो पानी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, अपवर्ड है. यहाँ पे soil का कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ पे soil वाटर पहुंचेगा नहीं, और यहाँ पे वाटर ज्यादा हो जाएगा. तो अनफिट फॉर क्रॉप. क्रॉप को अगर ज्यादा पानी दे देंगे तो भी खराब है, और पानी नहीं मिला तो खराब है ही. समझ में आ रही है बात? इम्प्रॉपर फ्लोइंग. Yes, sir. Yes sir. Okay.
So defective method of farming. Flowing in a wrong way up and down the slope form channels for the quick flow of water leading to soil erosion. Even this is true in case of hilly areas. वहां पे भी ठीक से नहीं किया तो जो वाटर यहाँ पे रिसाइड करना था और इस क्रॉप को मिलना चाहिए था वो क्या करेगा, नीचे तक चला जाएगा. So just an example how improper flowing can lead to soil erosion. Now this is what we studied about soil erosion. Okay, we studied gully erosion. Okay, we did sheet erosion. We did bend erosion. Then improper flowing. Okay, फिर क्या क्या improper flowing. So these are things which we did as a erosion of soil. Now we will do conservation. तो conservation में क्या करना है? Now conservation में आप देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते. अब वाटर फ्लो के इरोड हो रहा है, गली इरोजन, it will take place. Sheet erosion, this is also an action by water. Wind, action of natural force. Okay, तो improper flowing को हम बैलेंस कर सकते हैं. तो बैलेंस फ्लोइंग टेक्निक, ठीक है, बैलेंस फ्लोइंग टेक्निक. Wind erosion, suppose we are here in the state of Rajasthan and this is a desert area. So what we can do, we can set up sand dunes. ठीक है, सैंड ड्यून्स वगैरह बना के हम क्या कर सकते हैं, हम विंड इरोजन को रोक सकते हैं. ठीक है, विंड इरोजन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. सपोज दिस इज सैंड ड्यून्स आप लोगों ने देखा है ना, सैंड ड्यून्स देखा है? यस और नो कुछ तो बोलोगे. हाँ नो सर. नो सर. Yes, sir. दिख रहा है? इज इट क्लियर? ये देखो सैंड ड्यून्स जैसा है ये सब. यस सर. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये सैंड ड्यून्स है. ये भी देखो सैंड ड्यून्स से अगर दिख रहा हो तो ये सैंड ड्यून्स बनाते हैं. तो इस सैंड ड्यून्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम विंड इरोजन को रोक सकते हैं या सॉइल इरोजन को स्टॉप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक दो टर्म आएगा, कंटूर फ्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन. चलो बताओ कंटूर फ्लोइंग और टेरेस कल्टीवेशन में क्या डिफरेंस? आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा है इसे, तो लेट मी आंसर दिस. लेट यू आंसर दिस. लेट मी नो But हाउ. terrace, यस यस. terrace farming, sir, hilly areas में होती है. ओके गुड. और कंटूर फ्लोइंग? कंटूर फ्लोइंग क्या होता है? साहिल, what is the difference? Imani, you were saying something. किसी को नहीं मालूम है? चलिए, तो when we do farming along the contour of hills, ठीक है, we call it as contour flowing. कंटूर फ्लोइंग. ये कंटूर कैसा होता है? नेचुरल होता है. ये कैसा होता है? नेचुरल. यहाँ पे कंटूर बना हुआ है, इसी के अलोंग हमने क्या कर लिया, फार्मिंग कर लिया. अब इससे क्या होगा, इस जो नेचुरल है ऑब्स्टिकल, ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वाटर को टू गो फर्दर डाउनस्टेयर और डाउनवर्ड. तो यहाँ पे हम वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं. अलॉन्ग द कंटूर, ये नेचुरल बाउंड्री एक तरीके से है, बनाई गई है, ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए नहीं बनाई गई. सो वी विल डू कल्टीवेशन ओवर हियर. ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंटूर फ्लोइंग. और जब कंटूर अवेलेबल नहीं हो और हमने खुद एक ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हो, ठीक है, देन वी विल कॉल एज अ टेरेस फार्मिंग. देन वी विल कॉल इट एज अ टेरेस फार्मिंग. when we make obstacle, when we create obstacle, okay, in order
to retain water, then it is a part of terrace farming. You will find terrace farming in the state of Uttarakhand and all. So both are actually same, but there is a difference between. But there is a basic difference that this one is natural, this one is human made. Okay, Which one is more efficient? both are efficient. Okay, depends what kind of flowing you want to do and what kind of flowing is available. Farming is available. Okay, sir. So contour flowing. Flowing contour lines can decelerate the flow of water down the slope. इसी को contour flowing कहते हैं. Steps can cut out. Okay, steps can cut out. ये भी एक है part. Suppose this is a land. This is also a land. हो सकता है ये land थोड़ा मिट्टी इसमें ज़्यादा हो, इसमें कम हो. If you irrigate this particular area, what will happen? That water will flow from this area to this area. Okay, so you need to create a step over here. ठीक है, जो कि क्या करेगा, विद ग्रासेस से आप बना दीजिए या प्लांट्स वगैरह या ट्रीज वगैरह. इससे क्या होगा, यहाँ अब जब यहाँ से सॉयल फ्लो करके जा रही है, वाटर फ्लो करके इधर जाएगा, तो ऑब्वियसली व्हेन वाटर विल फ्लो इट विल टेक अवे सम सॉयल आल्सो, तो इट विल लीड टू सॉयल इरोजन. ओके, तो स्टेप्स अगर आप क्रिएट कर देते हैं तो आप सॉयल इरोजन को रोक सकते हैं यहाँ पे ऐसे केसेस में. तो स्टेप्स क्रिएशन इज आल्सो अ वे टू स्टॉप सॉयल इरोजन. तो आप यहाँ पे देखो, steps can be cut out the slopes, making trusses. Terrace cultivation restrict erosion. Western and central Himalaya have a well-developed terrace farming. Okay, large field can be divided into strips. Okay, so here actually what I was discussing here over here, it was a strip. Okay, ये strip था actually. Steps में इसी का था. ठीक है, स्टेप वाज अ पार्ट ऑफ दिस. ये स्टेप्स हम यहाँ पे काट रहे हैं इन टेरेस फार्म. ओके, समझ में आई बात? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? No, sir. No, sir. चलो, दिस वन इज स्टेप. ठीक है, ये स्ट्रिप बना रहे हैं. दिस वन इज स्टेप. वी आर कटिंग आउट स्टेप्स. Large field can be divided into strips. Strip of grasses are left to grow between the crops. This break up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Okay. Where shelter bed, planting lines of a tree to create shelter also works in a similar way. So I think shelter build के बारे में already land degradation में मैंने discuss कर लिया है ना? तो shelter bed से भी जो है कि हम significantly soil erosion को रोक पाए हैं, land degradation को रोक पाए हैं. Stabilization of sand dunes भी हम अगर करते हैं तो भी क्या होता है, desert area में हम soil erosion में को control कर पाते हैं. So these are different ways through which we can help in conservation of soil. So in conservation of soil, we did contour flowing, terrace farming, strip of grasses, shelter belts पढ़ा. फिर उसके बाद sand dunes, stabilization of sand dunes. ठीक है, proper flowing methods, technique. समझ में आया आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो. No. So in this way we completed this chapter, soil erosion, resources and development. किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, he and she can ask. If you have any kind of doubt in this chapter, you can raise your doubt right now. No? Okay. So now we will move to economics. Economics, first chapter, development. अभी हम लोगों ने resources and development किया. Now we will move to development. So basic question before I start this chapter is, what is development? What do you understand by development? Isn't it? So can any one of you explain the term development over here?
Sir, in general, development refers to progress. Progress. Which kind of progress? Progress in any field a person is working in. What do you understand by progress? What, sir? What do you understand by progress? What is progress? Sir, progress making advancements. What is advancement? When you Sir, are I doing think it's a better, growth. when you are doing better from your past, is a growth. Okay, whether it is social, political, economical, कुछ भी हो, अगर if you are doing better from your past, if your present is better than past, then it's a growth. Okay, and a part of development. So notion of development varies from person to person. ठीक है, notion of development क्या होता है, वो vary करता है from person to person. What is development for one may not be development for other. You might have studied this also. It could be ये vary different. करता है, हाँ, और disastrous भी हो सकता है. अब देखो, person to person vary करता है. For an example, which you will find in your book also, a poor farmer, the aspiration and needs of poor farmer is different to that of rich farmer. The notion of development you will find will be differ in both the cases. अब देखते हैं क्या है कैसे है. समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को, क्या मैं Yes, कह sir. रहा था अभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what development promises different goals? So we will come here directly in this portion. This is important. You will fill up this and you will let me know. Important for your examination. ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. Write down the development notion of a landless rural laborer. तो बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं ब्रैकेट में दिया है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही आ गया. Now the question paper, now the trend has been changed. Okay, and it will change more in upcoming days, in upcoming years. You will have to think analytically, well, whichever subjects you are doing. Okay, it doesn't matter. तो यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबरर्स के बारे में देखें तो अ लैंडलेस रूरल लेबरर विल सीक मोर डेज ऑफ वर्क. ज्यादा काम मिले उसे, बेहतर पैसे मिले, बेहतर सैलरी मिले उसको, लोकल स्कूल में उसके बच्चे जाएं पढ़ने के लिए, किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो उसके साथ, और वो भी विलेज का लीडर बन सके. ठीक है, तो ये एक लैंडलेस रूरल लेबरर का क्या है, डेवलपमेंट का नोशन है, जो कि एक आम चीज है और होनी चाहिए. उसके लिए अभी डेवलपमेंट का नोशन ये है. हो सकता है व्हेन ही अचीव्स ऑल दिस थिंग्स, उसका डेवलपमेंट का नोशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और फर्दर वो कुछ और डेवलपमेंट के लिए देखे. अब एक प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए देखो, हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस, एमएसपी और ज्यादा उनको मिले, जो भी वो क्रॉप जो है कि उगा रहे हैं. उनको हार्ड वर्किंग और चीप लेबरर्स चाहिए. अब देखो कंट्राडिक्शन कहाँ पे है. He is looking for a hard working and cheap laborer, whereas this landless or rural laborer is looking for better wages. कंट्राडिक्शन है इनके डेवलपमेंट के नोशन में. Did you find any Yes, sir. contradiction? This farmer want hard working cheap laborer, whereas this laborer want better wages. This is the development notion of both of them. और यहाँ पे तो ये अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिलाने की कोशिश करता है, सोचता है कि मैं दिला पाऊँ. यहाँ पे ये सोचते हैं इनके बच्चे अब्रॉड जाके जो है सेटल हो जाए. इंडिया में नहीं सोच रहे. दे वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड गो एंड सेटल अब्रॉड. ओके, सो इन दिस वे ये अलग अलग फील्ड को आप क्या करोगे, फिलअप करोगे, और डेवलपमेंट के नोशन उनको बताओगे, मुझे बताओगे. तो अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं. अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शी वांट्स टू गेट मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, एंड शी वांट्स फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू डू इन लाइफ. ऐसा नहीं होता है. इन केस ऑफ गर्ल यू विल फाइंड दे डोंट हैव ऑल दिस थिंग्स, सो दे लुक फॉर ऑल दिस थिंग्स. शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड. ये भी एक बात है. So this is the development notion of a girl from a rich urban family. It will differ from a girl
who belongs to a poor family or who is from a poor family. So in this way, we say that different person has different developmental goals. Okay, and the development for one may not be the development for other, and it can be contradictory or disastrous also, or destructive also for the other. अब फॉर एन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि a girl expect करती है as much freedom and opportunity as her brother. जितने उनके ब्रदर को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती है उतना इसको भी मिले, and that she also shares in the household work. So usually you will find in, I'm talking whole of the India over here, usually you will find girl work at home. They apart from studying, they used to do their household activities, and boy child you will not find that they are indulging in this kind of activity. So girl wants that her brother should also work or should share hand in household activities. समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So if a boy will do household activity, it will be destructive for him as per his mindset. But it will be a development for girl that her brother is also doing same kind of thing what she is doing. Okay? तो अब यहाँ पे एक तो ये contradictory notion था, एक industrialist का है. If a question comes in your examination, how illustrate by giving examples that how the notion of development is different to different people, and what is development for one may not be development for other, can be destructive for other. तो इस तरीके से आप यहाँ पे गर्ल का और बॉय जो है ब्रदर सिस्टर का आप दे सकते हो एग्जांपल. इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में दे सकते हो. इंडस्ट्रियलिस्ट will like to have more dance because it will generate more electricity, and electricity will help in further development of industries. ठीक है, but side by side if you will look, it will have a greater impact on wildlife and vegetation. ये आसपास के एरिया को सबमर्ज कर देंगे, लैंड को सबमर्ज कर देंगे. People will have to people lives will be disrupted over here. They will be displaced. जैसे tribals. You might have studied about नर्मदा बचाओ आंदोलन. पढ़ा है? हालांकि नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सुना है. ठीक है, तो यहाँ पे डैम्स के बनने से ये ट्राइबल पीपल को क्या करना होता है? डिस्प्लेस करना होता है. सो डैम्स का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, बट फॉर ट्राइबल पीपल इट विल बी डिस्ट्रक्टिव. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ये याद रखिएगा. Examiner can ask directly from here. Different person can have different developmental goals. What may be development for one may not be development for other. Even be justify the above given statement. Okay, by giving two examples. So you will give out these two examples. Is this clear? Yes, sir. Over here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, good. Now, income and other goals. अब इनकम और अदर गोल्स के बारे में देखें. तो इनकम एंड अदर गोल्स के अगर बारे में आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम मनी, okay, what else you need? If someone asks you apart from money, what else you need? So what you will say? What you will reply? The freedom, Social equality. equality. Peaceful environment. Equality. And next, first one is social equality. Next, Disease-free environment. disease-free. Okay. Respect. Yes. Respect. Anything else? So, ये सारी चीजें. So income will not, by having income will not make sure, or income will not make sure that you will have these things. You will be able to get all these things. Okay.
तो इसके लिए Yes, sir. भी पीपल ऑल्सो लुक फॉर दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स. दे वांट सोशल इक्वालिटी, दे वांट डिजीज फ्री एनवायरनमेंट. आप देखते हो दिल्ली में जो है कि वीवीआईपी भी रहते हैं और एक झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान भी रहते हैं. ठीक है, तो वीवीआईपी भी सेम काइंड, दे आर आल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच पुअर पीपल इज फेसिंग. ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ इनकम, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट एनवायरनमेंट इज सेम. समझ में आ रही बात? दिल्ली में तो आप नोटिस करते ही होंगे. Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस रेस्पेक्ट. ठीक है, तो रेस्पेक्ट भी एक ऐसी चीज है जो इनकम के जरिए नहीं होती है. ठीक है, योर बिहेवियर्स, योर वे ऑफ टॉकिंग, all and etc. will matter. Okay, and then only you will get respect. So this is all. These are all things. We will discuss more things later on. ठीक है, तो रेगुलर वेजेस और इनके अलावा भी लोगों को क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गोल्स हैं. और कभी कभी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो है महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं कुछ लोगों के लिए. ओके, सो मनी इन हैंड, मनी एंड मटेरियल थिंग्स कैन नॉट बाय एवरीथिंग. पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता. यू माइट हैव स्टडीड, यू माइट हैव हर्ड इन डिफरेंट मूवीज आल्सो. Yes, sir. ठीक है, कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते. तो एक ऐसा जरिया है जिससे लाइफ को हम सस्टेन कर पाते हैं. बट क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, जैसे कि ये, तब वो क्वालिटी आती है उसमें लाइफ में. ठीक है, तो सपोज यू आर वेरी स्टूडियस वन बट यू डोंट हैव एनी फ्रेंड. तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो बट कोई फ्रेंड ही नहीं है आपका बनने वाला है, अब बनता नहीं है. तो फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं की जाती है, वो है. ओके, Yes. तो यहाँ पे आते हैं. सर बस एक चीज पूछनी थी. हाँ बताइए. सर मतलब लेकिन हायर लेवल ऑफ इनकम कहीं ना कहीं तो इन चीजों से थोड़ा बहुत रिलेटेड है. कैसे? सर मतलब कोई बंदा बहुत कम इनकम अर्न कर रहा है, कुछ हद तक उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बट अब बिलियनर और मिलियनर जैसा भी उसका बिहेवियर हो थोड़ा बहुत, बट उसको रिस्पेक्ट मिलेगी उसकी पोजीशन की वजह से. मिलेगी रेस्पेक्ट. हाँ सर. will you pay tribute or will you respect someone? I'm just giving an example. I will not take name of anyone. ठीक है, you will give respect, will you give respect to that person who had killed Sushant? If No, suppose sir. No. suppose he and she is a billionaire, will you give? No, sir. No. So इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब पब्लिक डोमेन में आ जाती है, then you will not give it respect. Yes. तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है? जो अगला होता है उसको फिर भागना पड़ता है. Yes. Okay. तो कंसिडर एक दूसरा एग्जांपल है. अभी एक पॉइंट हमें समझने यहाँ पे. सिमिलर फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. ओके, डेवलपमेंट के लिए फॉर मिक्स ऑफ गोल्स हम देखते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जॉब 1, जॉब 2, 2 जॉब ऑफर हो रहे हैं आपको. तो इन जॉब 1 यू आर गेटिंग गुड सैलरी. You don't get Job security. job security यहाँ पे नहीं है. फंड बोनस नहीं है. गुड वर्किंग एनवायरनमेंट No. नहीं है. ठीक है, और डिस्टेंस ज़्यादा है. इंश्योरेंस नहीं है. ठीक है, Excessive these are- working hours. हाँ, ये सारे जो है मोर वर्किंग आवर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं.
or in this case job 2, you are getting reasonable salary. ठीक है, you are getting reasonable salary. फर्स्ट वन से कंपेयर कर रहे हैं. More working hours, well defined working hours or 8 hours working. फंड बोनस है, ये है, ठीक है. all these things are available. So which job you will like to have, this one or this one? Second one. So second one. Yes, sir. ठीक है, you will obviously look for second one where salary is low or reasonable, okay type, it will work, but look at other things also. ठीक है, people also want this kind of thing, they will also like to have this kind of thing, this kind of benefits. So for development, people look at mix of goals. A question like this can come in your examination. Justify the statement. When अब इस तरीके से जब लिखा हुआ आएगा, when it will come like this, you will have to answer from here or you can pick from here also. ठीक है, वो जॉब के बारे में है, आई थिंक मैंने डिस्कस कर दिया है. ठीक है, when you will read you will find same example. Okay, now अब विमेन के बारे में भी जो है हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें. यहाँ पे विमेन के बारे में देखोगे तो वो पेड वर्क में अगर एंगेज होती हैं तो हाउस होल्ड में उनकी थोड़ी रेपुटेशन क्या होती है, बढ़ती है. सोसाइटी में क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है, तो वहां पे हाउस होल्ड में इंक्रीज हो रही है रेपुटेशन, सोसाइटी में इंक्रीज हो रही है. देन मेन ऑफ द फैमिली और द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट वुमेन, ठीक है, जो क्या करते हैं हाउस होल्ड वर्क में भी शेयरिंग करते हैं. शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क भी होता है. और वुमेन का ज्यादा क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है. सो फॉर अ गर्ल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल एजुकेटेड, टू बिकम अ वेल एजुकेटेड पर्सन. Then only they will able to increase their status as of now. ठीक है, और you know that women are doing well. You must have heard about Shivangi Singh. सुना है, Rafale fighter, the first female. Sir. Yes, sir. She is from Varanasi, I think. So a safe and secure environment may allow more women to take a variety of jobs or a business. तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं people look for mix of goals when they will look for development. Okay? तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए. किसी का डाउट है तो पूछ लो. No, sir. Is it clear to everyone, each and everyone over here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब next thing है इसमें national development. Next one is national development. अब देखो national development की अगर बात की जाए तो everyone will have something to say in the development of nation for the national development. Okay, everyone has something to say. अब वो नोशन जो उनका होगा डेवलपमेंट का, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी डेवलपमेंट की, वो हो ऐसा नहीं कि गलत होगी. अगर किसी से पूछा जाए भाई आपके हिसाब से नेशन का डेवलपमेंट क्या है, तो सपोज किसी इंडिविजुअल ने कह दिया कि यहाँ पे जितने भी रिलीजियन हैं वो सारे रिलीजियन को क्या कर दो, खत्म कर दो, किसी कोई भी रिलीजियन कोई भी प्रैक्टिस ना करे. सपोज इस समझ से उससे डेवलपमेंट होगा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कम होगा. तो वो भी हो सकता है सही हो अपने एंड से. कह दिया जाए कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से हटा दो, वो भी हो सकता है सही है. कोई कह दे कि एक ही रिलीजन बस रखो, वो भी हो सकता है सही है. So means different people can have different notion of development and we cannot deny any developmental idea. समझ में आ रही है बात? हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये आइडिया जो है ये बहुत खराब है. हो सकता है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में सही हो, तो डिपेंड, इट वैरीज. तो सारे डेवलपमेंटल नोशन हम क्या करते हैं, देखते हैं. अब उसमें से हम कौन सा कंसिडर करते हैं. इफ समवन आस्क यू, चलो ये डेवलपमेंटल अगर आपको नोशन अलग अलग मिल रहे हैं तो विच वन विल यू चूज, तो आप कौन सा चूज करोगे बताओ.
आप वो चूज करोगे जिसका ग्रेटर एक्सेप्टेंस हो. You will Yes, choose sir. that developmental notion which has a greater acceptance in society. Okay, you will not choose something like which can lead to war, okay, or a conflict. So it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of country's development. Okay. However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts? So you will read and you will find out all this things by your own. Okay. Yeah, reading करा दें. What you want? Do you want a reading of this, or shall I proceed further? Skip. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. NTSC का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में. नोटिफिकेशन देख लिया? Did you gone through notification? बताओ. बताइए भाई. नो सर. आपको पता भी नहीं है. NTSC का फॉर्म आ गया है. ओके. और NTSC आई थिंक ये दिख रहा है आप लोगों को 2021 न्यू दिख रहा है. यस सर. ncrt.nic.in इस पे जाके क्लिक करेंगे. ठीक है, ये भी देख लेना. 20-21 ये दोनों में से एक होगा. Okay, sir. ये देखो दिख रहा है 13 दिसंबर संडे को पढ़ रहा है आप लोगों का एग्जाम. यस सर. ओके. और जो है दूसरा Yes, स्टेज sir. होगा आपका 13 जून. ओके फॉर एवरीवन. यस सर. तो ऐसे ही प्रिपेयर करिए अपने आप को उस हिसाब से. नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. ठीक है, तो कैसे करते हैं. हाउ, अब कंपेयरिंग की अगर बात की जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी कॉमन चीजें लेते हैं. ठीक है, जो कि लगभग सभी के पास क्या अवेलेबल हो. कंपेयर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है. अब एक अगर क्लास में अगर आप देखो तो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है. कोई अच्छा प्लेयर होगा, कोई अच्छा पढ़ने में होगा, कोई अच्छा Yes. सिंगर होगा, है ना. तो हम अगर एक क्राइटेरिया बना लेंगे हमें सिंगर देखना है, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ बच्चे ही मिलेंगे जो सिंगर हैं, बाकी लोग सिंगर नहीं है. प्लेयर में देखेंगे तो कुछ बच्चे ही मिलेंगे. बट वहां पे अगर कॉमन चीज देखी जाए, स्कूल है वो, तो स्कूल में सबसे पहला पैरामीटर जो चेक किया जाता है, जो फर्स्ट एंड अटमोस्ट इम्पोर्टेंट का होता है, वो है आपका स्टडी. सॉरी. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्टडी. तो हम स्टडी के पैरामीटर पे चेक करते हैं कि किस तरीके से वहां पे चीजें हो रही हैं. मतलब स्टडी के पैरामीटर से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, सॉरी, कंपेयर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. ठीक उसी तरीके से कंट्रीज को या स्टेट को भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. कैसे, एक ऐसे हम विद द हेल्प ऑफ मनी. ठीक है, हम देख सकते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है और कौन सी कंट्री नहीं. तो एक ये क्या हो जाएगा, कॉमन पैरामीटर हो जाएगा, एक कॉमन कंपैरिजन स्केल हो जाएगा, जिसके थ्रू हम डिमार्केट कर सकते हैं दैट विच कंट्री इज डूइंग वेल एंड विच इज नॉट. ओके. तो इसके लिए मनी के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका अपनाया गया, अब मनी में भी देखो तो अलग अलग कंट्री में, अब जैसे ये 2 कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब 10 है और यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे लोगों की इनकम 100 रुपीज है और यहाँ पे लोगों की इनकम 100 रुपीज है. तो इन दोनों में कौन सा डेवलप कहोगे आप या प्रॉस्परस कहोगे? Second वाला. सर सेकंड वाला.
टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम. टोटल हाँ, ये इनकम मान लेते हैं, ये पॉपुलेशन मान लेते हैं, और ये इनकम. इस केस में यहाँ पे हर व्यक्ति में 10 रुपए पा रहा है और यहाँ पे 1 रुपए पा रहा है. कौन सा ज्यादा डेवलप? First one. First one. First one. ठीक है, कौन सा होगा? फर्स्ट वन. तो दिस इज हाउ वी कंपेयर. ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरेज इनकम, which is the total income of the country divided by its total population, and it is also known as per capita income. Total income of the country upon total population. समझ में आ रही है बात? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये क्या है? दिस इज टोटल पॉपुलेशन, दिस वन इज पॉपुलेशन, दिस वन इज इनकम. ओके, तो इस केस में 10 रुपीज वाला क्या है? मोर प्रॉस्पेरस. सो इन फिर यही पैरामीटर हम लेके क्या करते हैं? चेक करते हैं कि विच कंट्री इज डूइंग वेल एंड विच इज नॉट. और इसको एवरेज इनकम भी कहा जाता है. पर कैपिटा इनकम को हिंदी में कहते हैं हर व्यक्ति आय. वी कॉल इट एज हर व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ऐसे भी बोल सकते हो. एवरेज इनकम भी बोल सकते हो. तो अब इससे हम एक रिपोर्ट देखेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. विच रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये कौन ब्रॉट आउट करता है? बाय वर्ल्ड बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी. Multiple time it has been asked in NTSC that which institution brought out World Development Report. So it's World Bank. So answer will be World Bank. तो ये क्लासिफाई करते हैं कंट्रीज को on the basis of per capita income. So as per the data 2017, वो कंट्री जिसकी एनुअल पर एनम पर कैपिटा इनकम $12,056 है, यूएस डॉलर है या अबव है, उसको रिच कंट्रीज कहा जाता है. We demarcate that country as a rich country. और वो कंट्री जिसमें पर कैपिटा इनकम 955 या इससे कम है, we will demarcate as a low income country. ठीक है, याद रखिएगा ये डेटा. तो as of now, India, if you will take India into consideration, you will find that it has per capita income of 820 US dollar per annum. ठीक है, 1820 US dollar per annum. So it will come under middle income, low middle income country. ठीक है, it will come under low middle income country as of 2017 data. Okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ, Yes, डाउट sir. है? डाउट Yes. है या फिर क्लियर है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने कहा डाउट है. Clear है, sir. Clear है. No, sir. ये पॉइंट पढ़ लेना. फॉर कंपैरिजन ही लिखा है. यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Okay. अब Yes, sir. कंपेयर करने के लिए एक से को कंसिडर कर सकते हैं एज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर. So you will go through this part. Okay, if you will have any. आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, while averages are useful for comparison. Very important for your examination. It helps for comparison, but it also hides disparities. अब आपने कह दिया पर कैपिटा इनकम. ठीक है, पर कैपिटा इनकम, इफ सपोज पर कैपिटा इनकम समझ लेते हैं टोटल इनकम ऑफ द फैमिली. Suppose
टोटल इनकम किसी भी फैमिली या कंट्री की मान लेते हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, इनकम और पॉपुलेशन। कंट्री ए की इनकम टोटल अगर मान लें, अगर सपोज कितनी है, टोटल पॉपुलेशन 5 मान लें, इनकम पहले देखते हैं, 100 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, फिर उसके बाद $300। ओके, और कंट्री बी मान लेते हैं, इनकम है 100, 75, 125, 120। ओके, पांच लोग रहते हैं मान लेते हैं, इसमें भी 5 लोग रहते हैं, इसमें भी मान लेते हैं 5 लोग रहते हैं। तो टोटल इनकम कितनी हो गई फर्स्ट वाले केस में? 500 हो गई। Yes, sir. Yes, sir. The second case, यहाँ पे टोटल इनकम कितनी हो रही है? 500 हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी 5 लोग हैं, और तो इन दिस केस, पर्टिकुलरली इन दिस केस, विच वन, अब देखो कि पर कैपिटा इनकम दोनों कंट्री अच्छी है, विच वन इज द बेस्ट वन, C1 CA or CB? CB. So CB. Sir, because CA has more disparities. Okay, wait. Right now, any clarification? I want to know whether which one is better, CA or CB. You said CB. Okay. What about the rest of the student? हिमानी, ज्योति और अनुराग। Sir, I have spoken CB. अच्छा, CB। हिमांशु यादव, मुझे सारे बच्चों को नाम तो याद नहीं है, बट मैं सभी से पूछ रहा हूँ। यस सर, सर CB शायद। कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको CA लग रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको CA लग रहा है? आंसर। So CB will be the correct answer, because here you will find कि more or less जो distribution of resources है वो लगभग क्या है? इक्वल है। Sir, equal. लगभग मतलब more or less बहुत ज़्यादा disparity नहीं है। अगर इक्वल ना भी कहें तो more or less ज़्यादा disparity नहीं है। But in CA disparity, these they are, I mean, some people are earning 20, 30, 50, and some people are earning 300. Huge disparity. If you want to live in country A, you will like to become a person with this much of resources or this much of money or income. और इसमें तो मोर और लेस आप चला लोगे, चलो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं है, किसी से भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करोगे कि इसमें बन जाए, इसमें बन जाए, इसमें भी बन गया तो चलो ठीक ठाक से, बट ये वाले केस में तो कभी नहीं जाएगा। So what we notice over here कि average income hides disparity, ठीक है? Average income is not an absolute way to find out comparison between या among different countries, ठीक है? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको देखोगे आप लोग और इसके नोट्स बनाओगे। Only Himani is sending out notes regularly. She is the only one who is following in this batch all the instruction given out by me. Sir, I have also sent the notes of the social development. What's your name? Sir, Anurag sir. Anurag. Yes, Anurag is also sending out. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? I don't know. हिमानी एक्चुअली आज ही नहीं भेजा है। Good, Himani and Anurag. So now
नेक्स्ट वन, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो अब आप इसको और फर्दर रीड करना चाहोगे, या फिर ये पहले जो पढ़ा दिया उसी में रीडिंग करना चाहोगे और समझना चाहोगे? कैसे करना है बताओ? फर्दर और पढ़ना चाहोगे या रीड करना चाहोगे? ऐसे Further, sir. श्योर? Yes, sir. Yes. इसी चैप्टर में कर जाओगे सभी बच्चे? चलो अब यहाँ पे देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पे। सो इन इनकम एंड अदर क्राइटेरिया you will find, as discussed earlier also, income and other criteria. Income and other criteria में देखिए, तो suppose you have a lot of income, ठीक है, but you are lagging in education, lagging behind in education, educational skill नहीं है, okay, so you don't have a good health, so will you consider be a developed one? No, sir. You will not be considered a developed one. You just possess only one of the important criteria. You don't have education and health, which is also an important parameter for the development of human beings. Okay, so you will not be considered as developed. अब country या state wise particularly बात करें इंडिया में, तो some countries are doing well as per the data of a per capita income, and means people living in that states are earning a very good amount of money, but when you will look at education and health, they are lagging behind. For an example, Punjab and Haryana, you will find that due to success of green revolution, the per capita income of the state is very good. Per capita income बहुत अच्छी है। आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो बुलेट वगैरह और जो है चलाते रहते हैं, गाड़ियां महंगी महंगी चलाते हैं, कनाडा जाते हैं, जब देखते होंगे आप लोग, देखते हैं ना? Yes, sir. बट वहाँ पे हेल्थ स्टेटस क्या अच्छा है? No, sir. हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक है, हेल्थ में दे आर लैगिंग, और आप जानते हैं कैसे है। एजुकेशन में भी देखो, दे आर नॉट डूइंग दैट मच which should put with, ठीक है, whereas when you compare it with केरल, तो केरल के पास भले ही पैसा नहीं है उतना, ठीक है, बट एजुकेशन लेवल में बहुत अच्छा, हेल्थ में बहुत अच्छा, और ऐसा नहीं कि पैसा है ही नहीं है, बट उसके साथ साथ एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। ओके, सो केरल विल इन रियल सेंस, ठीक है, केरल इन रियल सेंस विल बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड रादर देन पंजाब और हरियाणा। समझ में आई बात? Yes, sir. So here you will find some important terminologies. यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे हरियाणा, केरल और बिहार का बताया गया। बिहार में इनकम भी नहीं है बताया जाएगा, और फिर एजुकेशन भी कम है, हेल्थ भी कम है। केरल बैलेंस करके रखा है, हरियाणा में इनकम अच्छा है। देख रहे हैं आपको 180 है। Yes, sir. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको जाननी है वो ये है, इन्फेंट mortality rate, IMR, can be asked in NTSC, very important for your NTSC examination. Infant mortality rate, इसका क्या मतलब है? Number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. 1000 live children born in that particular year. ओके, तो 1000 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 साल में के दौरान जिनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इट मीन्स व्हाट? इट समवेयर इंडिकेट हेल्थ। क्या इंडिकेट कर रहा है? हेल्थ।
अगर आप हाइजीन मेंटेन रखेंगे, ठीक है, एजुकेशन होगा, लिटरेसी होगा, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। फिर लिटरेसी रेट, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप, ठीक है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? It's 74.04%. 74.04% सेंसस 2011। मेल का कितना है? 82.14%। फीमेल का कितना है? 65.46%। अप्रॉक्स, दोनों में अप्रॉक्स लगा लेना, समवेयर यहीं पे वैरी करता है। इन इंडिया टू whom we call literate, हम इंडिया में किसको कहते हैं लिटरेट? To whom we say that a particular person is a literate? People who are the age group above 7. Those persons who are 7 and above age group and are able to read and write in any one language are considered literate in India. So in that sense, you all are literate here. So do you think that is enough for your life? That is enough to sustain on this earth? 7 साल के ऊपर है और लिखना पढ़ना किसी भाषा में अगर जानते हैं आप, तो आप लिटरेट कहलाते हैं, ठीक है। बट जो मैंने उसके बाद क्वेश्चन पूछा आपसे सस्टेन करने वाला, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, ठीक है। इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ, you need to be educated. समझ में आ रही है बात? You need to be educated. There's a difference between the two. समझ में आ रही है बात जो भी मैंने बताई? Yes, sir. Yes, sir. Now, the net attendance ratio. So, net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in that age group. So, net attendance ratio, suppose in a particular state, there are 100 students in the age group of 14 and 15 years. And out of that 100, only 55 are attending school. ठीक है, तो आप रेशियो निकाल लोगे ना? आई थिंक अब रेशियो ऐसे ही रेशियो निकलता है ना, रेशियो का साइन मैंने सही बनाया ना? Yes, sir. तो आउट ऑफ 100 only 55 attending school and the rest are not. So this is what net attendance ratio. ये 14 और 15 साल के एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं और उसके कंपेयर में कितने परसेंटेज, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज में से बच्चे जो है पढ़ने जा रहे हैं. So this is what infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio rate is all about. So you will find that इसमें देखो infant mortality rate if you compare with Haryana, Kerala and Bihar, you will find Kerala is on better position than Haryana and Bihar. 10 बच्चे ही मर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में 30 हैं और बिहार में 35 है. इन केस ऑफ लिटरेसी रेट you will find कि इसमें सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे, 94% people are literate over here, then Haryana and then Bihar. The net attendance ratio you will find that Kerala is on 83, ठीक है, whereas Haryana is on 61 and Bihar is again on 43. So which one is the developed one? Which one you will consider a developed one? Kerala. Okay, you will consider Kerala and only Kerala here to be developed one. So apart from money, you need to look at all these parameters also. Then only you will be considered in real sense a developed country or a developed state or a developed person. आप पैसा कमाते हैं बहुत सारा, but you don't know, but you are not taking care of your health, you are not taking care of your education. You think that okay, पैसा है ना, चलो क्या दिक्कत है. So
You will not be considered in real sense a developed. Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. So this is all about your income and other criteria. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो. आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज अब रह गई आपकी. BMI एंड ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़े बहुत टॉपिक रह गए. स्कूल में कैसी चल रही है पढ़ाई अभी? सर अभी तो मिड टर्म हुए हैं सर. मंडे से स्टार्ट होगी रेगुलर क्लासेस. मंडे से रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे. कैसा गया आप लोगों का सोशल का पेपर? सर तो स्टार्टिंग में सर आपको बताया भी था. अच्छा आपने बताया था. बाकी ज्योति का, हिमांशु का, हिमानी, अक्षय? सर अच्छा सर मेरा गया. तो बहुत बढ़िया गया. बढ़िया गया. नंबर मिले? सर अभी नो नहीं. सर. ओके ज्योति आप बताओ बेटा. ज्योति योर वॉइस इज नॉट क्लियर. बी लाउडर. मेरा भी हुआ नहीं सोशल साइंस का पेपर. ओके हिमांशु? अब स्टार्ट होंगे 6 तारीख से, 6 तारीख से सर. 6 तारीख से स्टार्ट होंगे. यस सर. अक्षित माहेश्वरी यस सर. क्लास आपने ये 77% क्या लिखा है? सर लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस. यस सर. चेक करो. श्योर. सर 77.7% है. लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस. अक्षय दिख रहा है आपको? अक्षय Sir, but I also opened it, but it was showing the 77.7%. कोई बात नहीं यही है. ओके आई टोल्ड यू 65.86, 65.46, 82.14 आई टोल्ड यू है ना. Sir actually 77.7% is as per 2020. हाँ 220 अब 2021 में भी we will get a new census data and there we can have different percentage. Obviously we will have क्योंकि एक डिकेड की बात है. Okay. Yes sir. Akshay, so you might have seen a recent data, a recent one. Okay. चलो next class में मिलते हैं. We will continue with this. Okay. Okay. Thank you. Take Good care. night, Good sir. night. Good night sir. Good night sir.